Hello guys and welcome to the first episode of Hello C++. Since from our previous video we know that C++ is a high level language but it still supports low level programming. So those people who still don't have any idea about like what is high level language, what are low level language, compiler, interpreter, I recommend you all to see my previous video. Okay, moving ahead, since we know that C++ is a high level language, but it still supports low level programming. Now I have written a keyword here, low level programming. Now what we mean by saying low level programming? See, with the help of different header files and library of C++, we can communicate with the hardware or we can manage our memory in the machine level. इसका मतलब क्या कि C++ में किसी हेडर फाइल्स या कुछ लाइब्रेरीज का हेल्प से हम मशीन लेवल में जाके मशीन लेवल पे जाके हम उसका मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हार्डवेयर को। ये C++ का एक फीचर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, वी सी दैट एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ C++. Listen carefully. Execution speed of C++ is faster than Java or Python. We all know that C++ is totally compiled language and henceforth C++ speed execution of compilation is faster than Java or Python. It is an interesting fact that C++ has been derived from C language. जो कि हम लोग C++ पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली मेरा डिराइव हुआ है C लैंग्वेज से एंड C++ also supports object oriented programming concepts. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है ये तो समझ में आ गया, पर इसका फीचर क्या हुआ, इसमें एडवांटेज क्या है C++ का? जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से एडवांटेजेस ये मिलता है कि हम अपना लिखा हुआ कोड, जो भी मैंने कोड लिखा है प्रीवियसली या कभी पहले कोड लिखा है, कुछ भी मैंने प्रोग्राम लिखा है उसे मैं फिर से यूज करता हूँ। इसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड देयर आर मोर एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक मेंटेनेंस ऑफ कोड. Maintenance of code becomes more powerful when we use object oriented programming concepts. And since C++ supports object-oriented programming concepts, then it gives all these features like reusability of code, maintenance of the code, and more. Okay, let's start with our first program in C++. इस प्रोग्राम में हमारे पास टास्क है कि हमें सिस्टम स्क्रीन में डिस्प्ले करना है हेलो C++ को। ठीक, अब इसे लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट लाइन पे लिखा है फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। जनरली हम इसे कमेंट लाइन बोलते हैं। कमेंट लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट लिखने से पहले मैंने यहाँ डबल स्लैश सिंबल का यूज किया है। अब जनरली ये डबल स्लैश सिंबल का यूज करने से क्या होता है कि anything we write after this double slash symbol gets converted into a comment. ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि किसी भी स्टेटमेंट के पहले अगर मैं डबल स्लैश का यूज करूंगा तो वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कमेंट का फायदा क्या है? Why we need this comments? जनरली क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामर को अगर कोई कोड का कोई पार्ट एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, देन ही राइट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। उसको बताना हो कि why he has used that particular code, why he has written that particular statement, then he uses that comment format. Also, one thing, whenever I will use double slash symbol, it is a single line comment. Okay, if you want to use a multi-line comments, then you can use this particular symbol slash asterisk, and at the end again you have to use asterisk and slash. So using this symbol will convert your statement into a multi-line comments. Let's come to our second line. सेकेंड लाइन में मैंने लिखा है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अब ये आयो स्ट्रीम बेसिकली है क्या? आयो स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल
Header files are generally a predefined file or a user-defined file which contain certain definitions which we will use in our further programming. मतलब कि हेडर फाइल्स में कुछ कुछ ऐसा डेफिनेशंस होता है जिसका हमें अपने प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगा. Now, what is this hash? Hash is generally a preprocessor software which includes any particular header file which we have written with that before any compilation process starts. इसका मतलब कि compilation process चालू होने से पहले मेरे पास वो particular header file रहेगा जो कि मैंने उस प्री प्रोसेसर के साथ लिखा है. जैसे कि आई हैव रिटन हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो कंपाइलेशन प्रोसेस चालू होने से पहले मेरे पास आईओ स्ट्रीम का हेडर फाइल रहेगा. ठीक, ये तो समझ में आ गया कि हेडर फाइल्स क्या होता है एंड व्हाट आर प्री प्रोसेसर्स. अब आते हैं हम इंट मेन फंक्शन में. मेन फंक्शन क्या होता है? कंपाइलेशन ऑफ एनी C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन. इसका मतलब कि कोई भी प्रोग्राम मेरा C++ का हमेशा मेन फंक्शन से ही चालू होता है कंपाइल होना. ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. बट व्हाट इज दिस इंट? इस इंट का क्या सिग्निफिकेंस है? इस इंट का सिग्निफिकेंस बताते हैं. पहले समझते हैं कि ये वॉइड मेन क्या है. यहाँ भी मेन मतलब वही सिंपल मेन फंक्शन जहाँ से कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. पर ये वॉइड मतलब क्या? वॉइड मतलब ये कि मुझे कोई भी वैल्यू कंपाइलर को रिटर्न नहीं करना पड़ता. जब भी मैं वॉइड मेन यूज करता हूँ तो कोई भी वैल्यू मुझे कंपाइलर को रिटर्न नहीं करना पड़ता है. ठीक है, पर इंट मेन में क्या होता है कि मुझे हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना होता है कंपाइलर को. ठीक है, अब वॉइड मेन और इंट मेन में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं. जनरली वॉइड मेन क्या होता है ना, वॉइड मेन लिखने से क्या होगा कि मेरा कोड जो है वो कंपाइलर स्पेसिफिक हो जाएगा. कंपाइलर स्पेसिफिक मतलब क्या कि वॉइड मेन लिखने से मेरा प्रोग्राम किसी किसी कंपाइलर पे वर्क करेगा एंड किसी किसी कंपाइलर पे वर्क नहीं करेगा. ठीक है, इसलिए वॉइड मेन मेरा कंपाइलर स्पेसिफिक कर देता है कोड को. लेकिन अगर मैं इंट मेन लिखूंगा तो वो मेरा कंपाइलर स्पेसिफिक नहीं रहेगा. वो एज अ जनरल रहेगा, मतलब कि वो किसी भी कंपाइलर पे वर्क कर सकता है. ठीक है, इसीलिए writing void main in a program is considered as a bad practice. So we always use int main function. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब समझते हैं इस cout स्टेटमेंट को. cout स्टेटमेंट क्या है? अब cout जनरली मीन्स console out, मतलब कि हम जब भी स्क्रीन पे हमें कुछ भी डिस्प्ले करना हो, कुछ भी हमें प्रिंट करना हो, कोई भी किसी भी स्टेटमेंट को, तो वी यूज दिस सिंटैक्स नोन एज cout and we write that particular statement within this inverted commas, and after that we write endl. Now what is this endl statement? endl क्या है? endl basically मेरा रिप्रेजेंट करता है लाइन चेंज को. जब भी हमें अपनी स्क्रीन में लाइन चेंज करना हो वी यूज दिस endl. ठीक, अब नेक्स्ट हमें समझ में आ गया रिटर्न जीरो. रिटर्न जीरो क्यों यूज किया है मैंने? क्योंकि यहाँ पे इंट मेन है. इंट मेन का सिग्निफिकेंस क्या है कि कंपाइलर को कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न होना चाहिए. ठीक है, सो आई हैव रिटर्न जीरो. नाउ you can use anything other than zero. You can use 5, 6, any integer value. It is not necessary that you have to write zero. It is not necessary. So ये था हमारा पहला प्रोग्राम इन C++. ये हमने थ्योरेटिकल वे में देख लिया. अब इसे प्रैक्टिकल करते हैं. मैं इसी कोड को ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है. स्टार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिकल. फर्स्ट आई विल राइट कमेंट दिस first program in C++. Okay, after this I will include my header file which I will need in my further code. तो ये तो मैंने पूरा कोड लिख लिया. अब इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है.
Hmm. So we get an output as hello C++. Now what if I return 5? Let's see. We again got an output as hello C++ because we can use any other integer value other than 0. Okay. Now what if I write again cout hello C++? Now what will be the output? Okay, we got an output as hello C++ and hello C++ two times because we have written here two times. But what we see that the line was not changed. And as we know, to change our line, we have to use endl. Okay, so let's see. Here it is. The line was changed now. So this is the significance of this word endl. इस पे जाते हैं. नहीं, what is this namespace std? Generally, std means standard definition of all our syntax. ठीक है, इस namespace में जो भी syntax मैंने यूज किया है उसमें इसका definitions होता है and std means standard definition. ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ नेम स्पेस का. इसका मतलब इस लाइन का मतलब यही हुआ. ठीक है, तो पहला प्रोग्राम तो हमने कर लिया. हमें इससे बेसिक आइडिया लग गया है कि प्रोग्राम C++ में कैसे लिखते हैं. कमेंट लाइन क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, इंट मेन फंक्शन क्या होता है, सी आउट स्टेटमेंट क्या होता है. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा बिल्डअप होगा एंड वी विल डू मोर प्रोग्रामिंग. टिल देन, हैप्पी कोडिंग.